हाय हेलो नमस्ते, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी ये सब्जेक्ट एक यूपीएससी एस्पिरेंट किस तरह से उसे डील करना चाहिए, व्हाट शुड बी द आइडियल स्ट्रैटेजी टू डील अप विद दिस सब्जेक्ट पर्टिकुलरली फ्रॉम बोथ द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एस्पेक्ट। यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसी के साथ हम बुक लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। Like people say, there's a preconceived notion that Lakshmikant is more than enough to attend all the questions. No doubt, Lakshmikant is the best book which is available for polity subject in the market. बट मेंस में ऐसे बहुत कुछ सिलेबस है जो यहाँ पर कवर नहीं हुआ है, सो वी नीड टू डू एक्स्ट्रा रिसर्च ऑन दिस। सो उसमें आपको रेडीमेड बताऊंगा कि कौन से बुक्स रिफर करना है, कौन से वीडियोस देखना है, सो यू कैन स्कोर वेल इन दैट पार्ट। हम यहाँ पर PYQ डिस्कस करेंगे फ्रॉम बोथ विद प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एंगल। व्हाट इज द आइडियल वेटेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, हाउ मच एस्पिरेंट नीड्स टू लुक फॉर दिस क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन एस्पिरेंट नीड्स टू लुक फॉर, तो हाउ मेनी मार्क्स हैव बीन अलोकेटेड फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये एक डिटेल्ड वीडियो होगा। This is the strategy which I have adopted for my mains exam. It helped me out to clear it out as well. I've done a lot of research. So may I promise you, if you look for this video in complete, no, like you need not to refer any other source apart from this video. So let's start. तो पहले उसके पहले हम थोड़ा इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे। ये क्या है पॉलिटी सब्जेक्ट। अभी हम एक एस्पिरेंट को देखा तो ही इज़ द वन, लाइक एवरी वन स्टार्ट्स एंड स्टडीज दिस सब्जेक्ट. Like suppose if he is studying for prelims exclusively, he will start with polity. If he is studying for mains, people will start off with this subject. So you have to be very sure how to deal with this subject. This is a scoring area. Like no out of the context things are asked. It is just the interpretation of the things which are written in the book. In other subjects and all, it is like current aspects are more and all. But this is not the case in this subject. Confusion with respect to book list. As I told, people just keep the Lakshmikant book or some other class notes in front of them and they say like this is the ideal book for this subject. No. सो मैं आपको कन्फ्यूजन दूर करूंगा कि किस तरह से आपको जो पार्ट्स है 8 to 10 पार्ट्स है मेंस के, और गवर्नेंस के पार्ट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियोस। एंड हम यहाँ पर इवन वील लुक अप द लिंकेज ऑफ दिस सब्जेक्ट, हाउ दिस सब्जेक्ट इज लिंक टू GS2 पेपर, हाउ दिस सब्जेक्ट इज लिंक टू GS3 पेपर, हाउ दिस सब्जेक्ट इज लिंक टू द एथिक्स पेपर विच इज देयर, हाउ एन essay इज लिंक टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो अब यहाँ का नॉलेज वहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं, यही इस सब्जेक्ट का खासियत है। So if I have to talk about the prelims aspect, this topic is very important. Like in 2013, 19 questions were asked. Similarly in 14, 11 questions were asked. 15 में 13 questions पूछे गए थे. 16 में 9 questions था. 2017 में 19 question. And so by 21 में 18 questions थे. और 22 में जो अभी recently last year हुआ था, उसमें 11 question थे. So if I have to take an average, it will be around 15 questions, 15 plus questions, 16 as well. So 15 questions means 30 marks. And I'm telling you, these 15 questions are not tough. You have to score. If you have to be in that particular list, you have to make at least 13 questions to be correct out of this 15. दो या के वहाँ wrong होते, that is not an issue because साइंस एंड टेक एंड अदर सब्जेक्ट्स में, इकोनॉमिक्स में पीपल कंफ्यूज देमसेल्फ. सो वो लॉस कॉम्पेंसेट करने के लिए यू हैव टू डील विद दिस सब्जेक्ट एंड यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर इन योर मार्किंग एक्यूरेसी एस्पेक्ट. सो if I have to link in the UPSC syllabus, this polity comes under GS2, General Studies Paper 2. In 2020, if I have to, like, I have researched on it. In 2020, this subject carried 165 marks. In 2021, the subject carried 160 marks. In 2022, it alone carried 160 marks. In the recently held mains, it carried 160 marks. So if I have to decipher, out of the 20 questions which are there, like 10 plus 10 markers and 10, 15 markers, 12 to 13 questions out of 20 in the mains, like this is a huge number, and it has been divided between the polity and governance aspect. Like 10 questions polity की होंगे और 10 questions जो होंगे वो governance की होंगे. So in other words, if I have to tell you, like half of the questions, like not more than half, 13 questions out of like 12 to 13 questions are from this subject. So we know the importance of this particular subject. और उसके बाद मैंने बोला था आपको एथिक्स में कैसे लिंक होता है, ऐसे में कैसे लिंक होता है, so वो एक अलग एस्पेक्ट है. So aspirant needs to be very clear with this subject. सो बुक लिस्ट के बारे में इट्स लाइक नॉट, पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए. उसके लिए यू हैव टू कवर NCERTs बिफोर रीडिंग द लक्ष्मीकांत एस्पेक्ट. And if you go to decipher the syllabus from the NCERTs aspect, this particular book which is there, class 11, Indian Constitution and Work, is the Bible. It's a Gita for polity subject. So before starting, you have to study this book, the basic concept, the way it has approached, the first chapter itself, the constitution के uses क्या है, उसने डिटेल में बताया. Many aspirants keep on asking like कौन सा राइटिंग फ्रेमवर्क कैसे होना चाहिए पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए.
पॉलिटी सब्जेक्ट के लिए राइटिंग एस्पेक्ट, ना कि हिंदू, नॉट इवन इंडियन एक्सप्रेस, not even the class notes which are there. It should be, the writing flow should be as that of the Indian Constitution book. How brilliantly they have deciphered the parts and explained it to the aspirants. So before starting with the Lakshmikant, you have to read this particular book. तो उसके बाद रिसेंटली हम देखे होंगे कि प्रीएम्बल्स के जो टर्म्स है वहाँ पर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन डेप्थ नॉलेज इज रिक्वायर्ड. सो उसके लिए आपको पॉलिटिकल थियोरी करके एक बुक है 11th स्टैंडर्ड का. दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इन लास्ट 3-4 years. यू हैव टू रीड दिस पर्टिकुलर बुक. एंड उसी के साथ आपको क्लास 9 का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक 1 एज वेल एज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक 2 ऑफ 10th स्टैंडर्ड, ये 4 बुक्स आपको रिफर करने ही है बिफोर स्टार्टिंग, टू मेक श्योर योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. बिकॉज यूपीएससी देखेगा कि आपको ऐसे लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे, डीडी वासु से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देंगे. वो क्या देखेंगे, रूरल एस्पिरेंट को देखा जाएगा वहाँ पर. रूरल एस्पिरेंट के पास ये बुक्स ना होंगे, उनके पास बाजीराम विजन के नोट्स नहीं होंगे, बट दे विल हैव दिस एक्सेस टू एनसीईआरटीज. सो दे विल मेक श्योर दैट द क्वेश्चंस आर फ्रेम फ्रॉम दिस 4 बुक्स. और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आई कैन, इफ आई टू डेसिफर द सिलेबस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखिए जो डायरेक्टली इसको बुक से लिए गए. सो एन एस्पिरेंट हैज टू रीड दिस बुक मिनिमम फॉर 3-4 टाइम्स. और समझो अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से हो, मेडिकल से हो, आपको बेसिक नॉलेज ही नहीं पता है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, व्हाट इज मीन बाय कौन होता है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, क्या राइट्स क्या है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नेंस क्या है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये क्लास 8 और क्लास 6 का जो बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1 and 2, तो आपको ये 2 बुक डिटेल में पढ़ सकते हो आप. बट दिस इज नॉट फॉर द पीपल हु हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस पर्टिकुलर 4 बुक्स. सो आप ये 2 बुक से स्टार्ट करके ही आपको ये बुक्स में जाना है. सो इट विल हेल्प यू टू लाइक बेसिक एस्पेक्ट. दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बुक्स, बट द बेसिक एस्पेक्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए यू कैन रीड दिस बुक्स एंड देन लेटर गो ऑन टू दिस 4 बुक. So in particular, if you have to deal with NCERTs for this particular subject, there are 6 textbooks for it. Please make sure you're reading this. Questions have been directly asked from this 6 books. So उसके बाद NCERTs के बाद हमें specific books के लिए जाना है. As I told you in the first video itself, Lakshmikant is the ultimate guide for this books. बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि लक्ष्मीकांत ये जो बुक है उसके नोट्स कैसे बनाए. सो लेट मी टेल यू, लक्ष्मीकांत इटसेल्फ इज अ नोट्स. सो आप देखे होंगे कैसे फंडामेंटल राइट्स में चार्ट दिया गया है. सो इटसेल्फ इट्स अ बुक, कैसे प्रीएम्बल सब्जेक्ट हॉलिस्टिकली लिंक शॉर्ट दे हैव कवर्ड. सो इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर रीडिंग दिस बुक बिफोर योर प्रीलिम्स एटलीस्ट 30 to 40 times. देन ओनली everything will be clear for you. आपको अगर ओके लाइक आई हैव टू लाइक मुझे नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, तो पेज के ऊपर जो सेक्शंस होते हैं वहाँ पर यू कैन राइट स्मॉल नोट्स ऑफ लाइक स्मॉल शॉर्ट नोट्स यू कैन डू, और यू कैन stickers on that particular page so you can memorize the thing for mnemonics and all. But you have to deal this with this book holistically, whether it is class notes and all, but you have to jump on this particular book. So मेंस के एंगल से विजन वैल्यूएटेड मटेरियल आता है, मार्केट में अवेलेबल है. दैट इज़ वेरी यूजफुल. दे हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स इन डिटेल. अगर वो वैल्यूएटेड मटेरियल प्लस लक्ष्मीकांत प्लस द अदर एस्पेक्ट्स विच आई विल टॉकिंग अबाउट, वो अगर क्लियर होगा तो यू विल बी क्लियरिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट लाइक एनीथिंग. देन करंट एस्पेक्ट्स के लिए, इफ आई हैव टू टेल यू, फॉर पॉलिटी करंट एस्पेक्ट इतना ज़रूरी नहीं है. बट अब सब जो एग्जाम्पल, द गवर्नर इशू इज इन लाइक लाइमलाइट आफ्टर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आफ्टर केरला इशू एंड ऑल. सो वो आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है बाय रीडिंग दिस पर्टिकुलर बुक. तो आपको अगर आप यू नॉट फॉलोइंग डेली न्यूज़पेपर्स, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा इशू अभी लाइमलाइट में है. यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइमलाइट में है, कौन सा अदर इशूज आर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस लाइमलाइट में, कौन सा इशू है. सो फॉर दैट बुक यू हैव टू रिफर PT 365 and Main 365 Vision IS. You can, if you are reading daily newspapers, you just go to the introduction like summary जो होता है स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज में, you go through it and वो टॉपिक्स आप लक्ष्मीकांत में और आपके स्टैटिक बुक में पढ़ सकते हो. नो इफ लाइक आपको एक रिविजन चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस 2 books. For mains angle it is Mains 365 and P 365, plus you have to substitute it with daily newspapers. और मैं आपको बताना चाहता हूँ बेस्ट फॉर एनालिसिस पार्ट फॉर मेन्स एंगल, लेकिन ब्रॉड व्यू पॉइंट. अगर आपने हिंदू देखा एडिटोरियल, दैट इज लिटिल बिट tilted towards one end. Indian Express is not covering all the topics in depth. सो आपको एक होलिस्टिकली ब्रॉड कवरेज चाहिए होगा, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल एनालिसिस चाहिए होगा. टू यू कैन रीड सनसेट टीवी, यू कैन वॉच सनसेट टीवी एपिसोड्स विच आर देयर फ्री ऑन यूट्यूब. उसके पर्सपेक्टिव एपिसोड आता है, इट इन डेप्थ करके एक आता है. 75 years करके एक नया उन्होंने एपिसोड खोला हुआ है जहाँ पर वो 75 years में कौन से इंपॉर्टेंट लॉज गए हुए. सो देर आर मेनी 6 to 7 प्लेलिस्ट आर देयर विच आर वेरी यूजफुल. सो आपकी नीड के अकॉर्डिंगली यू कैन गो in the playlist section of the Sunset TV and watch those and make notes out of it. And the most important part and the neglected one is PRS website. अगर आपको एक सब्जेक्ट holistically
एक लॉ, एक आर्टिकल कोई एक्ट्स होगा, पॉलिसीज होंगे, आपको होलिस्टिकली डिस्कस करना है तो PRS वेबसाइट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर इट. उसमें अलग अलग सेक्शन है, पॉलिसीज है, इन डेप्थ उन्होंने एनालाइज भी किया है बहुत सारे पॉलिसीज को. सो यू कैन जस्ट रिलेंटली लाइक इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल अदर मटीरियल यू कैन गो टू द PRA वेबसाइट और सर्च करें. दिस इज अ गवर्नमेंट टाइप वेबसाइट, नो बायस एंड ऑल. यू कैन डायरेक्टली गो एंड सर्च फॉर इट. सो यहाँ पर हम इम्पॉर्टेंट थीम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. लाइक किस एरिया से पॉलिटी में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए इन दिस लाइक ईयर्स एंड ऑल, एंड विच सब्जेक्ट एन एस्पिरेंट नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन. सो प्रीएम्बल एक फर्स्ट टॉपिक है आपके, आई गेस पॉलिटी में थर्ड चैप्टर ये रहा गया है. सो प्रीएम्बल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम. यू हैव टू डील विद दिस प्रीएम्बल एस्पेक्ट इन डिटेल. यू हैव टू कवर ऑल द ब्रॉड terminologies which are there in this particular aspect. Preamble में like objectives of preamble पूछा गया 2020 में. 2019 में the sovereignty, socialist, secular ये terms के बारे में पूछे गए. उसके बाद amendments, the 42nd amendment, the 44th amendment, the 37th amendment, ये सब पूछे गए. लाइक 42nd 2018 में पूछा गया था. So this is one of the second most important theme which is there. And of course the giant, the fundamental rights, the fundamental duties, and the DPSPs are the most important one. Every year you will find a question from this particular aspect. Of course, now they are concentrating on the application aspect of it. So आपको ये पर्टिकुलर चैप्टर जो लक्ष्मीकांत में है वो आपको होलिस्टिकली कवर करना है. उसके बाद स्केड्यूल्स है, जो हमारे स्केड्यूल्स है तो आपको डिटेल में स्केड्यूल्स डिस्कस करना है. जैसे 5th and 6th स्केड्यूल 2015 में पूछा गया था, 7th स्केड्यूल 16 में पूछा गया था, 10th स्केड्यूल जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऑलवेज इन न्यूज, 2019 में पूछा गया था. सो दिस इज दैट. देन द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी एस्पेक्ट, नाउ इट इज लाइक लास्ट 2-3 years it is gaining importance. So like differences between Rajya Sabha and Lok Sabha, speaker, the provision with respect to Rajya Sabha and Lok Sabha election. If I'm have to talk about legislative act, the next executive में आपको president के पास, vice president, governor, prime minister, chief minister, attorney general, controller general, difference between state and union में क्या difference है तो आपको executive में वो पढ़ना है. उसी के साथ आपको judiciary में like judiciary is always in news. Recently the NJAC aspect which is there वो आपको पढ़ना है. Judicial review जो है, Supreme Court and High Courts, how many pending cases are there for main, if you are talking about mains aspect. उसी के साथ आपको forms of government के बारे में पढ़ना है. Parliamentary system क्या है, प्रेसिडेंसी लाइक पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या है, ये सब आपको इस एस्पेक्ट में पढ़ना है. उसके बाद बिल्स के बारे में पढ़ना है. व्हाट इज़ पब्लिक मेंबर बिल, प्राइवेट मेंबर बिल, रिट्स के बारे में आपको पढ़ाई करना है. कमिटीज़, देयर आर मेनी कमिटीज़ फॉर्म ऑन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. मोस्ट ऑफ देम आर नॉट यूजफुल बट देयर आर फ्यू कमिटीज़ विच आर वेरी यूजफुल एंड देयर रिकमेंडेशन यू हैव टू गो थ्रू देम. यू कैन यूज दोस कमिटी रिकमेंडेशन इन योर मेन्स एज वेल एज प्रीलिम्स एस्पेक्ट. प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लोकल गवर्नमेंट, लाइक 73rd and 74th अमेंडमेंट जो हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन 1991-92 में, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. यू हैव टू स्टडी दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट इन डेप्थ. यू हैव टू गो इन डेप्थ अपार्ट फ्रॉम लक्ष्मीकांत एस्पेक्ट एज वेल. सो हमारे पॉलिटी के प्रीलिम सिलेबस में दे हैव जस्ट मेंशन वन सिंगल लाइन. सो उससे हमें डिसिफर नहीं कर सकते कि क्या है इस आइडल, ये डिमांड क्या है सब्जेक्ट का. बट यूपीएससी ने मेंस की उसमें हमें लाइक 8 to 10 सब टॉपिक्स दिया हुआ है कि यू कैन टोटली डिसिफर द सिलेबस आउट ऑफ इट एंड वॉट लाइक वी कैन इवन डिवाइड बाय प्रीवियस क्वेश्चन देख के वी कैन डिवाइड लाइक कौन से टॉपिक्स मोर इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक प्रीलिम मेंस एंगल्स में कैसे इंपॉर्टेंट है. सो नाउ इन दिस द फर्दर पार्ट ऑफ द वीडियो लाइक मैंने क्या किया है, आई हैव डिवाइडेड ऑल दिस सब टॉपिक्स इनटू डिफरेंट स्लाइड्स एंड आई विल मेक श्योर टू एड्रेस ईच ऑफ द पॉइंट्स देयर. लाइक इसके लिए कौन से बुक लिस्ट रेफर करना है, क्या आपको सब पॉइंट्स क्या होगी, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स लिखा हुआ है तो उसमें सब पॉइंट्स आपको एस्पिरेंट क्या पढ़ना चाहिए, ये सब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो नीड नॉट टू वरी, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विच आई हैड इम्प्लीमेंटेड इन माई स्टडीज आई विल मेक श्योर दैट इट हैज बीन रीच टू यू पीपल. सबसे पहला हेडलाइन जो है वहाँ पर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर. सो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स जो सब्जेक्ट है उसमें आपको 1773 से 1947 जो एक्ट्स जो फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटी है वो आपको डिटेल में पढ़ना है. उसके साथ हमें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, इनेक्टमेंट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है. और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फीचर्स के बारे में, फीचर्स क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, यूनिटरी कैसा है, फेडरल कैसा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशिप
प्रॉपर परमिट, ये आपको डिस्कस करना है उसके. देन अमेंडमेंट्स, द इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एज आई टोल्ड यू, लाइक 42nd 44th अमेंडमेंट. सो उसके बारे में पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है. अमेंड को कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो आप, वो बारे में पढ़ना है. उसके साथ में सिग्निफिकेंट प्रोविजंस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. बेसिक स्ट्रक्चर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. लाइक कैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ, वॉट आर द जजमेंट्स फॉर इट. उसी के साथ हमें ये भी डिस्कस करना है कि वेदर द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज बीन मेंशन इन डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट इन प्रीलिम्स एंगल. So this particular aspect which is there can be easily covered with Lakshmikant, as well as the NCERT which I told you, Indian Constitution and Work, the red one which I had attached on the front slide. वो आपको, if you study these two books, you will cover all these headlines which are there. And please मैंने जो आपको बताया हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग में जो सब पॉइंट्स आपको कवर करना है वो आप देखते जाइए ये पर्टिकुलर लक्ष्मीकांत टेक्स्ट बुक में. तो आपके आराम से आपका ये सब पर्टिकुलर हेडलाइन जो क्लियर हो जाएगा. सो सेकेंड टॉपिक जो है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड स्टेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इस टॉपिक के लिए फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनियन ऑफ स्टेट में आपको क्या पढ़ना है, 7th शेड्यूल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. देन वी हैव टू स्टडी अबाउट फाइनेंशियल फंक्शन. देन वी हैव टू स्टडी लाइक चैलेंजेस पर्टेनिंग जो है सेकंड टॉपिक फेडरल सिस्टम. बार आपको फेडरल इज इंडिया ट्रूली फेडरल, ऐसे डिबेट जो होते हैं. तो दैट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए लाइक द चैलेंजेस विच आर गोइंग ऑन. सो सेंट्रल स्टेट रिलेशंस क्या है, इंटर स्टेट रिलेशंस क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स लाइक बिटवीन कर्नाटका, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड मेनी अदर स्टेट्स एंड स्टेट काउंसिल्स क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स क्या है, जोनल काउंसिल्स क्या है. देन रोल ऑफ गवर्नर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस. आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट अप्रूवल कब चाहिए, गवर्नर व्हेन कैन ही द गवर्नर सेंड, एंड लाइक सम ऑफ द अपोजिशन रूल स्टेट्स लाइक वहाँ पर कैसे गवर्नर एंड सीएम के बीच में टसल हो रहा है. सो दिस कैन बी एन एस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर हेडलाइन. तो उसी के लिए आपको डिवॉल्यूशन ऑफ पावर एंड फाइनेंसिस के जो टॉप हेडलाइन है वहाँ पर आपको 11th एंड 12th शेड्यूल के बारे में पढ़ना है. स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट गवर्नमेंट, जो इंडेक्सेस आते हैं नीति आयोग की, उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस करना है. सो ऑल द सब पॉइंट्स विच आई टोल्ड यू हैव बीन डिस्कस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, Lakshmikant, and you have to refer main 365 or the daily newspapers short notes which you are making, as well as Sunset TV analysis. I told you like governor issue and all. They have beautiful like बहुत अच्छे तरह से उन्होंने Sunset TV में डिस्कस किया the issues which are going on in and around the world. So PRS website, as I told you in detail, they will discuss like article policies they have discussed. So apart from Lakshmikant and the NCERT aspect, you can go for these three aspects which I have mentioned here with relation to this particular topic which is there in the syllabus. So this is the most important one. So third subtopic which is there, separation of powers and grievance redressal mechanism. So इसके लिए आपको सेम प्रीवियस स्लाइड में मैंने जो बताया है वही आपको काम आएगा. ये सनसेट टीवी समरी हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क हो, उसके बाद जो PRS वेबसाइट है वही आपको यहाँ पर काम आएगा. सो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में पीपल को कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स को क्या है वो. सो व्हाट इज ग्रीवेंस रिड्रेसल यहाँ पर पढ़ना है, नीड ऑफ इट. वी हैव टू स्टडी अबाउट ग्राम न्यायालय एज देयर, वी हैव टू स्टडी नालसा लोक अदालत. सेपरेशन ऑफ पावर्स में डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्पेक्ट में कैसा है, चेक एंड बैलेंसेस कैसे चल रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, रिलेटेड जजमेंट जो है केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, etc etc. So you have to study this particular aspect same as the previous like document jo hai main 365, they will cover it like polities, like whatever things which are going on they will link it here and they will frame questions. So need not to go out of the syllabus, okay, need not to go research on it, do not do PhD on this particular subject. So the book list have been stable. So मैंने first दो slides में book list का लगाया था, you have to just rely on it. It is like I have researched like anything on it. So ये एक tricky topic है कि इंडियन कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज यहाँ का लक्ष्मीकांत में तो आपको नहीं मिलेगा नॉर्मली, और बाकी लाइक जो सब्जेक्ट में बुक्स है सो बुक्स आर नॉट क्लियर. तो उसके लिए आप एक बेस्ट सोर्स विच इज दिस विजन डॉक्यूमेंट है. यू हैव टू जस्ट टाइप दिस एंड यू विल गेट अ विजन डॉक्यूमेंट ऑन गूगल. सो यू जस्ट, आई एम टेलिंग यू, जस्ट रिफर दैट पर्टिकुलर सोर्स. सो यू हैव टू लाइक कंपेयर कंपेरिजन करना है इंडियन का विद USA, इंडियन का विद ऑस्ट्रेलिया, इंडियन का विद अदर लाइक रशिया एंड ऑल. So secular state कैसा है, universal adult franchise, India was the first like in the starting itself implemented. Emergency provision discuss करना है, 3-tier government कहाँ से copy हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड लॉ, इम्पीचमेंट क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स, DPSP या कहाँ से लिया गया है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इट. सो वी हैव टू कंपेयर एंड what is the source of it, that is fine, like then you have to compare what is the difference between that particular source, how the makers have rectified the loopholes in those and implemented those in India.
सो यहाँ पर आपको विजन डॉक्यूमेंट में कंप्लीट डिस्कशन दिया है. यू हैव टू जस्ट रीड इट वंस, द एस्पेक्ट्स विल बी वेरी क्लियर. तो ये एक टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन. नाउ इन 3-4 years that I told you, there is tussle always going on. So this topic is in news always. So इसके लिए आपको लक्ष्मीकांत as well as 365, no need of Sunset TV and all, because this is the kind of static part, because the issues after every 3 years 4 year it will go on in the news. सो आपके लिए यहाँ पर आपको यूनियन क्या होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट, व्हाट इज कैबिनेट सेक्रेटरी, स्टेट केस में गए तो व्हाट इज गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट, सेक्रेटेरिएट, जुडिशरी में 3 tier स्ट्रक्चर है. So what are the pendency of cases there? CGI का issue, recently a new CGI is appointed, 50th CGI, उसके बारे में that is in news. So issues related to that. Judges का जो है like NJC aspect and all. Judiciary का how long can judiciary, like कितने aspect तक it can go into depth? Can it go into the issues of legislature and all? So यहाँ पे you will find all this part in Mains 365 magazine, which is their Vision, and Lakshmikant magazine. So you have to cover it from there. सो स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. सो यहाँ पर आपको जो मैंने पहले बताया था वो सब पढ़ना है. उसी के साथ मेन इंपॉर्टेंस जो है, व्हाट इज प्रेशर ग्रुप्स, व्हाट इज एसोसिएशंस, रोल ऑफ एंड द रोल इन द पॉलिटिकल सिनेरियो हियर. सो यू हैव टू मेक श्योर लाइक they are for sure covered in Main 365 magazine. Need not to refer, do not diversify your sources like anything. Like ये भी यहाँ से मैं ये प्रेशर को पढ़ूंगा, यहाँ से मैं डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ूँ. Everything is covered in Main 365 every year. So you have to just go in little bit depth. So for that app you can go for your class notes which you have studied in, or you can just use Google, like pressure groups के बारे में. Example, pressure groups here. Pressure groups, what are the characteristics of pressure groups? What is the difference between pressure groups and political parties? Types of pressure groups, उनके function क्या है, उसके rules क्या है, and how has it been successful? What are the like major implications, like उन्होंने क्या successful models उनकी वजह से आए, shortcomings क्या है उसके बारे में. So we have to discuss the topic in like various angles here. That is the main aspect here. Do not go just by the pressure group definition. So you can search for some data related to it. Like this aspects are mentioned in the books. Like if you're googling on it, तो आपके mind में stuck होगा. So that is what I'm trying to tell you here. So for that, Main 365 magazine which is there, that is more than enough. Next topic which is there, that is like important one, that RPA Act. So mains, first of all for mains I will discuss, that is fine. For prelims like 1950 का जो RPA Act है, 1951 का जो RPA Act है, उसके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए. Directly they will mention some of the provisions and they will say which of them is not the feature of RPA in 1951 Act. So you have to be very clear about this aspect here. So उसके लिए मेन्स 365 जो नॉट मेन 65, विजन IAS का जो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट है पॉलिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी, दैट इज मोर देन इनफ. दे हैव कवर्ड इट लाइक ब्यूटिफुली फ्रॉम, इवन आई हैड रेड ड्यूरिंग माई मेन्स फॉर दैट, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इटसेल्फ. सो नेक्स्ट पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक in the syllabus is appointment for various posts. So you have to deal with the appointment, किसका appointment, who appoints election commissions and its members, यूनियन पब्लिक UPSC में कौन किसका रोल होता है, स्टेट पब्लिक कमीशन में किसका रोल होता है, फाइनेंस कमीशन में किसका रोल होता है. सो NCST पोस्ट किसका रोल होता है, कैग में कौन अपॉइंट करता है, अटॉर्नी जनरल. ये कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया. उसी के हमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करना है, लाइक स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में डिस्कस करना है, जैसे नीति आयोग, RBI, ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, CBC, CIC, CBI, लोकपाल, लोक अदालत, नेशनल कमीशन फॉर मूवमेंट. सो ऐसे जो बहुत सारे जो एस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बॉडीज एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स है, उसके बारे में आपको इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में डिस्कस करना है. सो आपको यहाँ पर इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबके इश्यूज ऑलमोस्ट सब सेम होगा. लाइक जुडिशियल, इसमें ये रोल होगा, लाइक एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा रोल है. सो ऑल द इश्यूज लाइक यू हैव टू जस्ट beautifully you have to link all the points there. For that need not to go for any current aspect static book. Just read Lakshmikant with in this particular section जो है Lakshmikant में पार्ट C पार्ट B जो है आपको डिटेल में डिस्कस करके ये आराम से आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पर. सो मैंने आपको बोला स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी बॉडीज लाइक नीति आयोग, लास्ट वो एस्पेक्ट यू हैव टू डील इट विद इन दैट Lakshmikant एंड प्लस मेन्स 365 एस्पेक्ट हियर. सो यू विल बी एबल टू लाइक क्लियर इट विदाउट एनी हसल हियर. So now we are coming up to the like polity. आप यहाँ तक हमने polity डिस्कस किया, and I told you like out of 12 questions like polity and governance में से 10 questions are from that polity aspect or 2 questions are from this governance aspect. So now we are jumping to the governance aspect which is there. So
this is the tricky one. People do not study this, plus do not neglect this part, because like 2 to 3 questions just governance part se aa raha hai, and the syllabus is like hardly 2 headlines which are there. So and the content available for this like immense, so you have to just make use of it, like role of NGOs, SHG, number of like NGOs under scrutiny, like financial aspect related to like foreign funding and all. So you have to just dig depth into the issue, current aspect, and you have to link it here. सो यहाँ पर आपको क्या करना है, डू नॉट गो फॉर लाइक स्टैटिक डॉक्यूमेंट बहुत सारे डिवाइड किया है, लाइक व्हाट आर एनजीओज, टाइप्स ऑफ एनजीओ, नीड नॉट टू गो फॉर दैट. You have to search the definition of NGO and what are the current issues which are going on in the news. You have to just okay, अब ये अगर NGO का प्रॉब्लम चल रहा है, so what are the क्यों प्रॉब्लम चल रहा है, what are the solution, क्या लूपहोल्स क्या है इंडिया में NGOs के रिस्पेक्ट में. तो वो आपको डिस्कस करके करंट अफेयर्स में आराम से मिल जाएगा. विद बेसिक एस्पेक्ट्स है वो गूगल से आप ही गूगल कीजिए. डू नॉट गो फॉर एनी स्टैटिक बुक्स विच आर देयर, बिकॉज अननेसेसरी विल बी वेस्टिंग योर टाइम देयर. So if I have to talk about the first part, policies and interventions, which is there. So like what are the policies of government in the health sector, gender sector, education, poverty, how the government is dealing with that, and the issues, implementation angle. We say India is a law-rich country, like many policies are there, but implementation is always an issue here, which people point out. So what are the concerns associated with it? What are the suggestions for it? So we'll deal with that, and analysis of the main schemes. जो schemes government के headline schemes like बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, and the smart city, मनरेगा, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो स्कीम्स है उसमें क्या लूप होल्स है, उसके क्या पॉजिटिव्स है, नेगेटिव्स, यहाँ पर आपको डिस्कस करना है. और जो सेकेंड पार्ट है यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, वहाँ में आपको जैसे बताया SHGs, NGOs, दिस आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, कोऑपरेटिव, सोसाइटीज, ट्रस्ट, ये आपको डील करना है. डू नॉट गो लाइक व्हाट इज द इवोल्यूशन ऑफ दिस ट्रस्ट एंड ऑल, नो, यू हैव टू जस्ट नीड ऑफ इट, issues of it, and what is the way forward. You have to just deal with it, and if possible try to bring up some committee recommendation, some person, eminent person must have told something. So आपको यहाँ पर आपको डिस्कस करना है, तो आराम से आपको गूगल में मिल जाएगा इन द न्यूज़ सेक्शन, प्लस करंट अफेयर्स शॉर्ट्स विच आर देयर, यू कैन गो फॉर इट. और नेक्स्ट टॉपिक जो है रोल ऑफ, एंड यहाँ पर आई फॉरगॉट in this particular aspect, one thing I forgot is about the e-governance topic which is there. So that is the important one. So what are the implication of e-governance, models, successes, limitations है, जो वो potential क्या है, citizen charter. People are not like what are the components of citizen charter नहीं पूछ रहे, like you have to mention it somewhere here and there in the topic itself. So 6 principles of citizen charter, shortcomings क्या है, transparency, accountability, these are the most important one which is there. So you have to detail on it. उसकी definition पढ़ के what are the things which are going on in the current affairs, what are the issues, which it should be in your fingertips. इसके लिए notes भी बनाने का मेरे हिसाब से इसके notes की भी ज़रूरत नहीं. It should be in your fingertips from Google as well as current affairs aspect. So the last topic, which is in governance as well as the polity part, if I have to strategize this thing, is the role of civil services in the democracy. There's a beautiful ARC report with that. If you just read that book along with here and the static aspect, you would be able to aram se clear this particular topic. And this is important. Even in ethics topic, it is linked. Like one question is there almost. Like even one question or even like half question part of it is been there. So if you study it here itself, it will be easy for you to deal with this particular aspect. तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से पॉलिटी एंड गवर्नेंस को डील करना है. यू जस्ट go through this video once again. You download, like make note of the book list which I have mentioned, and do not diversify. Again I'm telling you, do not diversify it. So at the end I will like to end it with a quote by Bruce Lee which I found out on my book cover at the end part. So knowing is not enough, we must apply. Willing is not enough, we must do. So we know the book list and everything we are aware about, but the main aspect which is there is implementation. Okay, I told you about ARC report, but people will not go for that ARC report and they will not read. They will try to Google up here and there, or from Lakshmikant Seller, nahi, Lakshmikant nahi, they will leave that thing. So that should not be the aspect here. So please cover this. This is scoring area from both mains and prelim aspect, and very important area aspect. So deal with it in a holistic way. So I end my video. So if you like this video, just tell me which strategy video should I come up next with. Thank you so much for watching this video.